Good morning, everyone. In the previous class, we had completed the topic of bills of exchange. Any doubt in that, anyone? No? Okay, good. Then we begin with the next chapter, that is incomplete records. First of all, let us understand the concept of incomplete records. What do we mean by this? There are many businesses being run on a small scale. You might have seen various tea vendors, small shop owners, uh, hawkers, etc., who are running their business on a small scale. And many of these do not have knowledge of accounting. So they do not know how to maintain proper systematic accounts. And they their business is at such a small levels, at such a small scale, that they cannot even afford to hire an accountant to maintain their accounts on a regular basis. So what they do is they just maintain very simple records of their business transactions. किस तरह के रिकॉर्ड्स? चाहे कोई कितने भी छोटे लेवल पर बिजनेस कर रहा हो, एटलीस्ट कितना अमाउंट उसे मिला कहां से और कितना अमाउंट कहां पे स्पेंड हुआ, इतना हिसाब तो हर कोई रखता है, चाहे कितने भी छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहा हो. तो इन अ वे दे मेंटेन अ कैश बुक. May not be in a proper format of cash book, but in some or the other form they might be writing on a in a notebook कि इतना कैश आया प्लस इतना कैश गया, कहां पे स्पेंड हुआ, कहां से आया, वो सब डिटेल दे माइट बी राइटिंग इन एनी मैनर. ठीक है. उसके अलावा एक और चीज का हिसाब हर कोई रखेगा अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं, कि उसने किसको उधार पर सामान कितने अमाउंट का बेचा और किससे कितने अमाउंट का सामान उसने उधार में खरीदा. मींस द अमाउंट ओड टू क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट ओड बाय द डेटर्स. ठीक है. तो ये हिसाब भी जनरली हर कोई रखेगा. तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है. मे नॉट बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट्स इन विच वी हैव स्टडीड देम. देन कैश and bank record in some or the other form is maintained. ठीक है. So we can say personal accounts are maintained, real and nominal accounts, some of them may be maintained, some of them may not be maintained. There is no fixed criteria because depends on the knowledge of the business person. Maintenance of cash book is there, as we discussed. Too much dependence is on original vouchers. अगर इनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है या कुछ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, प्रॉफिट या लॉस को एस्टिमेट करना है, क्योंकि सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो ओरिजिनल जो वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, रिसीट्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि सिस्टमेटिक वे नहीं है तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है. कोई हो सकता है कुछ रियल अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा हो, कोई दूसरा एक भी रियल अकाउंट मेंटेन ना कर रहा हो सिवाय कैश के. तीसरा हो सकता है कि नॉमिनल अकाउंट सैलरी का मेंटेन कर रहा हो, रेंट का मेंटेन कर रहा हो, और कोई नॉमिनल अकाउंट मेंटेन ना कर रहा हो. देयर मे बी अ फोर्थ पर्सन हु मे नॉट बी मेंटेनिंग एनी नॉमिनल अकाउंट एट ऑल. सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Then suitable only for sole proprietorship and partnership firms. Why are we saying this? Because in case of other forms of business, that is cooperative society, company form of business, it is mandatory to keep proper books of accounts as per double entry system. लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ऐसी कोई लीगल कंपल्शन नहीं है. ठीक है. तो स्मॉल स्केल पे जो बिजनेस कर रहे हैं, दे कैन मेंटेन इन दिस इनकम्प्लीट मैनर ऑल्सो.
Then since exact figures of assets and liabilities are difficult to ascertain, why are they difficult to ascertain? Because there is no maintenance of real accounts. Yes, because all accounts are not maintained properly. Some accounts may be maintained, some accounts may not be maintained. So it is difficult to ascertain exact amounts of assets and liabilities. So the statement of assets and liabilities that we prepare, generally we call it balance sheet. लेकिन इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसे बैलेंस शीट नाम नहीं देते, बिकॉज बैलेंस शीट हम नाम तब दे सकते हैं जब एग्जैक्ट वैल्यूज हमें पता हो एसेट्स और लायबिलिटीज की. इस केस में नहीं पता होती तो बैलेंस शीट की जगह उसका नाम चेंज होकर हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्या हो जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. यस, तो ये बैलेंस शीट ही है, लेकिन उसका नाम चेंज है. क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट्स एसेट्स और लायबिलिटीज के हो सकता है नहीं मालूम हो. Now in this system, for certain transactions, both the aspects are recorded. For example, cash received from a debtor. पर्सनल अकाउंट तो मेंटेन होंगे ही होंगे, कैश भी मेंटेन हो गई, तो दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हो गई. कैश आया ये भी रिकॉर्ड हो गया, किससे मिला वो भी रिकॉर्ड हो गया. So both the aspects are recorded for certain transactions. Similarly, cash paid to a creditor. Then second possibility is for certain transactions only one aspect is recorded. For example, cash sales. तो कैश में तो रिकॉर्ड कर लिया कि भाई इतना कैश आया गुड सेल करके, लेकिन नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, तो सेल्स का अलग से कोई अकाउंट नहीं है. सो ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, द अदर वन इज नॉट. Similarly, cash purchases. So some transactions may be like this where only one aspect is recorded. Okay. Third possibility is for certain transactions no aspect is recorded. For example, depreciation on machinery. ना नॉमिनल अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी नहीं है. रियल अकाउंट्स भी कैश के अलावा कोई मेंटेन नहीं है तो मशीनरी अकाउंट भी नहीं है बुक्स में, तो इसलिए ना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई ना मशीनरी में रिकॉर्ड हुआ. सो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड सम अदर सच ट्रांजैक्शंस मे नॉट बी रिकॉर्डेड. इज इट क्लियर? यस सर. कई बार इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली वो इतना अप्रोप्रिएट नेम नहीं है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम सुनकर ऐसा लगता है कि हर ट्रांजैक्शन की वन एस्पेक्ट इज बीइंग रिकॉर्डेड, वन एस्पेक्ट इज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड. जबकि यहां पर हमने अभी ऑब्जर्व किया तीनों पॉसिबिलिटीज हैं. फॉर सम ट्रांजैक्शंस बोथ द एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, फॉर सर्टेन ट्रांजैक्शंस ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, and for certain transactions no aspect is recorded. Now let's come to benefits or advantages or merits of this method. Simple method है, जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है मेन चीजों का. लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि अकाउंटेंट भी हायर करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं हो रही. स्मॉल कंसर्न्स के लिए सूटेबल है. इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. कैसे वो भी हम आगे देखेंगे जब हम कैलकुलेट करेंगे. फ्लेक्सिबल मेथड. फ्लेक्सिबल मतलब विच कैन बी चेंज्ड, और इसमें हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्मिटी तो कोई है नहीं. जिस बिजनेस पर्सन को जैसे समझ में आता है वो उस हिसाब से अपने अकाउंट्स मेंटेन कर लेता है. कोई सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करता है रियल अकाउंट्स में, कोई कैश के अलावा हो सकता है फर्नीचर और मशीनरी का अकाउंट भी बना ले. There may be another person who may be maintaining all the real accounts. ठीक है, and so on. So it is a flexible method. Are the advantages clear? Yes sir. Now limitations or drawbacks. First, preparation of trial balance is not possible. Why not?
So because many of the accounts are not maintained, so we cannot figure out the balance. Yes, absolutely right. Because many accounts are not maintained, so even if we try to prepare trial balance, it will not tally because some of the accounts will be missing. Incomplete and unscientific system. True profit or loss cannot be ascertained. Although it is easy to estimate profit or loss or calculate profit or loss, but that profit or loss will only be an estimate. True profit or loss or exact profit or loss cannot be ascertained because many accounts are not maintained at all. Difficulty in preparing balance sheet for the same reason. No control on assets as real accounts are not maintained. अगर फर्नीचर में से कोई आइटम मिसिंग भी हो जाए तो पता नहीं चलेगा, अगर क्योंकि फर्नीचर अकाउंट बना ही नहीं हुआ तो रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितना फर्नीचर था. ठीक है. ऑल्दो दिस इज मेनली टू से इट थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली स्मॉल स्केल पे बिजनेस होगा तो एसेट्स भी कम होंगे, फर्नीचर वगैरह भी कम होगा, तो वैसे ही एक नजर में ही ओनर को ध्यान रहेगा कि कौन सी कोई चीज मिसिंग हो जाती है. तो not recognized for the purpose of income tax and sales tax. इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करते. अगर उनके सामने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रेजेंट करनी है किसी ने तो दे हैव टू बी इन प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम ओनली. Fails to provide adequate and reliable figures required for planning and decision making. Difficulty in comparative study. As we discussed, there is no uniformity. Comparison के लिए uniformity होनी जरूरी है. अगर हम एक कॉमर्स स्टूडेंट का रिजल्ट एक साइंस स्टूडेंट के साथ कंपेयर करें या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो दैट विल बी एन अनफेयर कंपैरिजन बिकॉज यूनिफॉर्मिटी इज नॉट देयर. सब्जेक्ट्स ही अलग अलग हैं तीनों के. सिमिलरली इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम में एक बिजनेस पर्सन है जो सिर्फ कैश और पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है. देयर इज अनदर बिजनेस पर्सन जो कैश और पर्सनल अकाउंट्स के अलावा सैलरी का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रही है. देयर इज अ थर्ड बिजनेस पर्सन जो पर्सनल अकाउंट्स, कैश का रिकॉर्ड एंड बैंक में भी उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस हैं तो बैंक का रिकॉर्ड भी मेंटेन्ड है. सो देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी बिकॉज ऑफ विच it becomes difficult to compare the results of one business firm with another. Clear? Yes, sir. Proper valuation of assets is not possible. अगर बिजनेस को कभी सेल करना चाहें तो उसकी सेल वैल्यू एस्टिमेट करने में भी बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि एसेट्स की वैल्यूएशन पता ही नहीं है, क्योंकि एसेट्स के सबके रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, लायबिलिटीज के सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है. Internal check becomes difficult for the same reason. Limitations clear? Yes, sir. Okay, so now we come to the accounting part. How to ascertain their profit or loss then? जब proper records ही नहीं है तो profit और loss कैसे ascertain करें? इसके दो methods हैं. पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. लिख लो ये, ascertainment of profit and loss, profit or loss from incomplete records. फर्स्ट मेथड लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. It is also called capital comparison method, also called net worth method. Sir, written. ओके, अब इसमें क्या स्टेप्स हम लेते हैं प्रॉफिट लॉस डिटरमिन करने के लिए. फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, प्रिपेयर
opening statement of affairs to find out the opening capital. Opening statement of affairs मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग मतलब एंड ऑफ द ईयर. ओपनिंग को हम ये भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर. Sir, written. ओके, तो क्या करना है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन, जिन भी एसेट्स की इंफॉर्मेशन हो हमारे पास, उन एसेट्स की वैल्यू डाल दो उसमें. एक ईयर के बिगिनिंग में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ईयर के बिगिनिंग वाली या प्रीवियस ईयर के एंड वाली, ठीक है. जो लायबिलिटीज हमें मालूम हो उनकी वैल्यू डाल दो. दोनों का डिफरेंस निकाल लो. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज विल बी कैपिटल, तो वो हमारी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू निकल आएगी. सेकेंड स्टेप, सिमिलरली if closing capital is not given in the question, prepare closing statement of affairs with adjustments to find out closing capital. इसी तरह से करंट ईयर के एंड में भी एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो. करंट ईयर के एंड के लिए जितने एसेट्स की वैल्यू मालूम है लायबिलिटीज की वैल्यू मालूम है, वो उसमें डाल दो. क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं तो वो एडजस्टमेंट्स भी इसमें कर दो. और फिर एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस निकाल लो, दैट विल बी दी क्लोजिंग कैपिटल. written. Okay. Third step is prepare statement of profit or loss. ये कैसे बनानी है ये भी अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करने से पहले एक इक्वेशन को समझते हैं. हमारे पास ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल होती है दैट इज ओपनिंग कैपिटल. ड्यूरिंग द ईयर उसमें क्या क्या ऐड और लेस होता है. इफ द ओनर हैज ब्रॉट सम एडिशनल कैपिटल, वो ऐड हो जाती है. ये लिखते जाओ साथ साथ. अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को मिला तो उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, सो प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. प्रॉफिट जो होता है वो भी कैपिटल में ऐड होता है, सो प्लस प्रॉफिट. ऑब्वियसली लॉस होगा तो वो माइनस होगा. अगर ड्राइंग्स कुछ की हैं ओनर ने तो वो माइनस हो जाती हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ है तो वो भी माइनस हो जाता है. और ये सब ऐड लेस होने के बाद ईयर के एंड में जो कैपिटल है उसका अमाउंट आ जाता है, मींस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल. ये इक्वेशन लिख लो. अब इस इक्वेशन से हम प्रॉफिट डिराइव करने की इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है. प्रॉफिट को अगर हम सिर्फ इधर रखें अब लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी आइटम्स राइट हैंड साइड पे ले जाएं, तो क्या होगा. प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल था राइट हैंड साइड पे, वहां से स्टार्ट हुआ. अब बाकी जितनी भी आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गई उनके साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. सो प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये दोनों आइटम माइनस थी, दूसरी साइड जाके प्लस हो गई. बाकी सारी जो प्लस थी वो सब अब माइनस हो जाएंगी. सो माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ये हमारी बन गई इक्वेशन प्रॉफिट को निकालने के लिए. लिख लो ये भी.
Sir, written. ओके, इस इक्वेशन के बेसिस पर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये बना लो साथ साथ फॉर्मेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ, आगे नेम आ जाएगा फर्म का, उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड, ईयर एंडिंग की डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जैसा फॉर्मेट है इसका, प्लस माइनस अमाउंट में। ये फॉर्मेट ड्रॉ करके बताओ, फिर इसके कंटेंट्स डिस्कस करते हैं। Sir, drawn. ठीक है, तो इक्वेशन के हिसाब से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, उसे लिखेंगे प्लस कॉलम में जो भी अमाउंट होगा। ऐड क्या क्या करना है, दो चीजें ऐड करनी है, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो लिख लो ऐड ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। Sir, written. ठीक है, उसके बाद इक्वेशन में देखो माइनस क्या क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लेस करके लिखो ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐड वाले सारे अमाउंट प्लस कॉलम में आ जाएंगे, लेस वाले सारे माइनस कॉलम में आएंगे। Sir, written. फिर प्लस और माइनस दोनों कॉलम का टोटल कर देंगे हम, और फिर हम उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस जो आएगा, सपोज प्लस इज मोर देन माइनस टोटल, तो प्लस में फिर आएगा डिफरेंस। सपोज प्लस में अमाउंट है 10,000, माइनस का टोटल है 7,000, तो 3,000 का डिफरेंस आ गया पॉजिटिव, वो प्लस कॉलम में लिखेंगे, और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, और अगर नेगेटिव ज्यादा हुआ पॉजिटिव से, तो माइनस वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे डिफरेंस का, और उसको लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर। क्लियर? Yes, sir. Now let us do an illustration to understand this further. Is this screen visible? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखो पहले। Kriti grocery shop does not maintain proper books of accounts. Following information is available from its records. ये कुछ अमाउंट्स पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, और इनके अमाउंट्स दे रखे हैं 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20 को। उसके बाद फर्दर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये लिख लो पहले सारी, फिर आगे करते हैं।
written. Okay, now let's understand. First let's read this question. ये कुछ हमें दिए हुए हैं particulars, उनके amounts दिए हुए हैं opening और closing. ठीक है, फॉर्मेट्स भी बना लो, दो फॉर्मेट्स बना लो बैलेंस शीट वाले. ऊपर हेडिंग देनी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कृति ग्रोसरी शॉप. एक होगा एज एट 31 मार्च 19, दूसरा होगा एज एट 31 मार्च 2020. ठीक है, ये आप बना लो अराउंड 10 लाइन्स ईच. और तीसरा फॉर्मेट ये बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ कृति ग्रोसरी शॉप फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2020. ये भी अराउंड 10 लाइन्स का फॉर्मेट बना लो. Made the formats. Okay, now let us see. Yes, Prishita made the formats. Yes, sir. Okay, let's begin. पढ़ो question. कृति ग्रोसरी शॉप does not maintain proper books of account. सबसे पहले दिया हुआ कैश इन हैंड. कैश इन हैंड इज एन एसेट. तो 2019 वाला ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगा एसेट साइड पे. लिख लो कैश इन हैंड 3000. और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आ जाएगा. वहां पे लिख लो कैश इन हैंड 4500. ओपनिंग स्टेटमेंट में 3000, क्लोजिंग स्टेटमेंट में 4500 कैश इन हैंड. देन कैश एट बैंक, दिस इज ऑल्सो एन एसेट. ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखो एसेट साइड पे 50,000 और क्लोजिंग स्टेटमेंट में 45,000. written. Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ो क्या है. Stock. Stock, where will it come? Sir, in the first one 60,000 and in the last one 75,000 assets. Yes. ओपनिंग स्टेटमेंट में स्टॉक 60,000, क्लोजिंग स्टेटमेंट में स्टॉक 75,000. Written. Next is Debtors. Assets. First one 12,000 and last one 14,000. yes, ओपनिंग स्टेटमेंट में डेटर्स 12,000 और क्लोजिंग स्टेटमेंट में डेटर्स 14,000. Sir, written. Next is Creditors. Liabilities. Opening statement में 15,000, closing में 14,000. वेरी गुड. क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट में 15,000 और क्लोजिंग वाली में 14,000. Written. Now read the question further. On 31st March 2019, it had a machinery with the book value of 80,000 and furniture with the book value of 20,000. अगली लाइन Depreciation at the rate 2.5% per annum is to be charged on both. ठीक है, तो मशीनरी को कहां पे दिखाएंगे? अगेन एसेट्स में. ओपनिंग स्टेटमेंट में लिख लो मशीनरी 80,000,
और क्लोजिंग में क्लोजिंग में भी 80,000, लेकिन क्लोजिंग में लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि अभी उससे डेप्रिसिएशन लेस करनी है। डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 2.5% पर एनम। 80,000 का 10% कितना हुआ? 8,000. 8,000। 8,000 का हाफ 4,000. वो 5% हो गया। 2.5% उसका भी हाफ होगा, कितना? 2,000. 2,000। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट में मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो 2,000 और नेट अमाउंट आ गया 78,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. इसी तरह से फर्नीचर को हम दिखाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट में 20,000, क्लोजिंग स्टेटमेंट में भी 20,000 लेकिन इनर कॉलम में। ठीक है, और उसमें भी डेप्रिसिएशन लेस होनी है 2.5%। इसका कितना हुआ? 10%। 2,000. उसका हाफ, 1,000. उसका भी हाफ। 500. यस, तो डेप्रिसिएशन -500 और नेट अमाउंट आ गया 19,500। Okay, sir. उसके आगे पढ़ो क्या है। कृति Kriti had introduced further capital rupees 55,000 during the year end यस, वेट and वेट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड मतलब एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल का क्या करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। so we add to opening capital. अगर हमने क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, लेकिन प्रॉफिट वाली इक्वेशन देखो जो लिखी है, उसमें क्लोजिंग कैपिटल से हम स्टार्टिंग करते हैं और एडिशनल कैपिटल को क्या करते हैं, प्लस या माइनस? Minus. माइनस। तो ये हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। उसमें पहले फर्स्ट लाइन में लिख लो क्लोजिंग कैपिटल, जिसका अमाउंट अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में फिर लिखो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और माइनस कॉलम में 55,000। Written. एंड हैड ड्रॉन रुपीज 2,000 एवरी मंथ। एवरी मंथ 2,000 है तो ईयर का कितना हो गया? 24,000. ड्रॉइंग्स को क्या करना है, माइनस या प्लस? Plus. प्लस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ही नेक्स्ट लाइन में लिखो ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर और प्लस कॉलम में लिखो 24,000। Written. A loan of 30,000 was taken on 31st December। मतलब ये पिछले साल नहीं था लोन, 31st दिसंबर को लिया है, तो ओपनिंग स्टेटमेंट में तो नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट में आएगा लायबिलिटीज साइड पर। लोन 30,000, on which interest at 6% per annum is outstanding। 30,000 का 6% कितना हुआ? 1,800. 1,800, लेकिन वो हुआ पूरे साल का, पर एनम है। हमें निकालना है 3 मंथ्स का, क्योंकि 31st दिसंबर को लोन लिया है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 मंथ्स का निकालना है। तो 1,800 का 1/4 450. यस आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 450। Written. अब इसके बाद सारी आइटम्स हमने प्लेस कर दी जो भी क्वेश्चन में दी हैं। पहले हम ओपनिंग स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। उसका टोटल आ रहा है 2,25,000 और उसमें से 15,000 लेस करके बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगी वो आ रही है 2,10,000। इसे हम लिख देंगे कैपिटल।
Which capital is this, opening or closing? Closing capital. नहीं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, ये पिछले साल वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, तो इसमें जो कैपिटल निकली वो ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल को हम करते हैं लेस, तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग कैपिटल माइनस कॉलम में 2,10,000। Sir, written. इसी तरह से हम क्लोजिंग स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे, इसका टोटल आ रहा है 2,36,000 और ये डेबिट में है 44,450, ये लेस कर दो तो डिफरेंस आ रहा है कैपिटल जो आएगी 1,91,550, तो ये 1,91,550 हमारे पास अमाउंट आ गया कैपिटल का, कौन सी स्टेटमेंट में, क्लोजिंग स्टेटमेंट में, करंट ईयर के एंड में जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। दैट मींस दिस अमाउंट इज क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स में, बस उसका अमाउंट लिखना है, प्लस कॉलम में या माइनस कॉलम में? Plus column. वेरी गुड, प्लस कॉलम में लिख लो 1,91,550। इसके बाद प्लस और माइनस दोनों कॉलम्स को कर लो टोटल, प्लस का टोटल आ रहा है 2,15,550 और माइनस का आ रहा है 2,65,000। इनका डिफरेंस कितना आया? 49,450. Yes, and that is positive amount or negative amount? Sir, negative, so loss. तो माइनस कॉलम में लिखेंगे 49,450 और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर। Sir, written. ओके, दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। तो सिंपल है प्रॉफिट या लॉस निकालना इस मेथड से। Yes, sir. ठीक है, एनी डाउट्स एनीवन? We'll stop over here today. Thank you. Thank you, sir.